Hello and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners, will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and 2371-7117. And listeners, for those listeners who are going to be calling us from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और आज आपके सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर सिंह जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा। Thank you, Vishal. At the stock market, Sensex ends with marginal gain of 29 points at an all-time closing high of 60,048. Nifty moves just 2 points to a fresh record high. Rupee depreciates 15 paisa against the dollar. Prime Minister says Ayushman Bharat Digital Mission has the power to revolutionize healthcare in the country. And estimated total employment in the 9 sectors stands at 3 crore 8 lakhs in the first round of the April to June quarter. सेंसेक्स 29 अंक की मामूली बढ़त से सर्वकालिक उच्च स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी मात्र 2 अंक बढ़कर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। रुपया हुआ डॉलर के मुकाबले 15 पैसे कमजोर। प्रधानमंत्री ने कहा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में देश के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की ताकत। और अप्रैल से जून तिमाही में अर्थव्यवस्था के 9 सेक्टरों में अनुमानित कुल रोजगार की संख्या 3 करोड़ 8 लाख रही। शुरुआत शेयर बाजारों से कर लेते हैं। घरेलू शेयर बाजारों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज मजबूत शुरुआत के बाद 0.1% की मामूली बढ़त से 29 अंक ऊपर 60,078 की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी मात्र 2 अंक बढ़कर 17,855 के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स बिना किसी बदलाव के बंद हुआ, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई। At the stock market, sparing its solid gains in the morning, the Sensex at the Bombay Stock Exchange ended with a marginal rise of 29 points or 0.1% at a fresh record high of 60,078 today. The Nifty at the National Stock Exchange moved up just 2 points to close at another all-time high of 17,855. In the broader market, the BSE mid-cap index ended flat, but the small-cap index shed 0.1%. Sectorally on the BSE, the auto index jumped 3.1%, the realty index advanced 2.9%, the energy index climbed 1.6%, oil and gas index added 1.4%, consumer discretionary index rose 1.2%, BankX gained 0.8%, utilities index added 0.6%, and the power index moved up 0.5%. Among the declining indices, the IT index slid 2.3%, the tech index slipped 2%, the healthcare index dropped 1.2%, FMCG index fell 0.8%, the capital goods index declined 0.6%, and the telecom index shed 0.5%. And we already have our first listener online with us. That's Mr. Atanu from Kolkata. Mr. Atanu, welcome to the program. Please ask your question. Yes, hello. Good evening. My question is, what is authorized capital? What is paid up capital? And what is market cap? Can you please repeat that? What you want to know? What is authorized capital? What is? Hello, Mr. Atanu. जी, लगता है इनका संपर्क हमसे yes, Mr. Singh. He wants to know what is authorized capital.
So basically, when you form a company, you have authorized capital, and at the same time, it's market capital. It's not market. It's usually market cap. Market cap when there is a listed company in the market, and the value of the stocks at the price they are being traded multiplied by the stocks issued by the company. So it basically result in the market cap of the particular company. And he also wants to know what is paid up capital. Paid up capital is also basically when you have more some authorized capital, then next stage is the paid up capital. You have to infuse more capital in the company. It's like that. जी, और हमारे अगले कॉलर हैं गुरुनाथ फोन लाइन पर थाने से। हेलो जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। और सर हरवी सिंह को भी नमस्कार। जी नमस्कार। और सर मेरा सवाल है सर, अभी जो मार्केट है हाई लेवल पे है सर, क्या आगे भी 2-3 महीने ऐसे ही बढ़ता रहेगा, बढ़त दिखेंगे? और मेरा दूसरा सवाल है सर, इसमें जो बढ़त देख रहा है सर, इसमें रिटेल इन्वेस्टर और जो संस्थागत निवेशक और एफआई, इनका कितना कंट्रीब्यूशन सर, किसका ज्यादा होता है इसमें? देखिए, अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन में तो एफआईज और एफपीआई का, बिकॉज बल्क में वो इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। बट डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू मार्केट म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट जो मार्केट में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काफी है। और इधर जो बड़ी तादाद में जो एक तो नए अकाउंट्स खुले हैं और म्यूचुअल फंड्स फ्लडेड हो गए एक तरीके से इन्वेस्ट, उसमें जो उनके पास इन्वेस्टेबल फंड है, क्योंकि अभी जो रिटर्न के लिए जो भी सेक्टर्स अवेलेबल हैं जहां आपके पास ऑप्शंस हैं, बिकॉज अगर आप फिक्स डिपॉजिट्स में पैसा रखेंगे, इंटरेस्ट इज वेरी लो नाउ, तो कोई रिटर्न आपको नहीं लगता है। रियल एस्टेट सेक्टर इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। बुलियन का परफॉर्मेंस बल्कि बहुत ऊपर चला गया था, बहुत लोगों ने हाथ जलाया होगा, जो है ये है। सो what is their option in front of you to invest in stock market? And stock market is really going very high compared to pre-COVID level. It is almost double. So in that case, many people made a lot of money, but at the same time, market value, this earning per ratio, company's profit, and the ground reality of the economy, there is no match right now. जी हरवीर जी, यही जानना चाह रहे कि अगले 2-3 महीने में किस तरह मार्केट, इसीलिए जो है, देखिए अभी इवन आरबीआई गवर्नर ने भी कोशिश किया कि ये जो इतना फ्लो है मार्केट में, इसका जो रिसोर्सेज अवेलेबल है लिक्विडिटी का, उसको देखते हुए मार्केट अभी ज्यादातर लोग कॉशियस अप्रोच लेने की बात कर रहे हैं। वी आर इन अ वेरी वेरी टिपिकल जोन। ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट बहुत लंबा छलांग लगा देगा, बिकॉज ऑलरेडी जो वैल्यू है वो पीक पर है स्टॉक्स की। और इसमें क्या है कि करेक्शन भी आ सकता है। इट विल डिपेंड ऑन कि किस तरीके से, जैसे अभी चाइना में एक रियल एस्टेट का इशू आया है, वो एक हाल है कि जो अमेरिका में हुआ था उस तरीके का लेवल नहीं है 2008 वाला, बट इट्स ए ह्यूज कंपनी जो है। उसके अलावा चाइना ने सडनली जो आईटी कंपनीज हैं उनके ऊपर काफी सारे एक्शंस लिए हैं। सो रेगुलेटरी चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। सो एंड दिस कंपनीज आर हेवीली बेसिकली इन्वेस्टेड फ्रॉम अमेरिका एंड अदर कंट्रीज, सो लिस्टेड इन यूएस मार्केट एंड ऑल। सो इनका एक ग्लोबल ये भी आ सकता है। प्लस आप देखिए कि एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे कि अभी ये माना जा रहा है कि थोड़ा मार्केट में संभल कर चलने का वक्त है। जी, हमारे कॉलर हैं सतीश दिल्ली से और रिंकी बलरामपुर से। हम आपका कॉल लेंगे, आप फोन लाइन पर बने रहें, लेकिन छोटा सा लेते हैं ब्रेक। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
मार्केट मंत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। सतीश हमारे साथ दिल्ली से अपने सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी सतीश जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है, जैसे यूट्यूब ने ना दुनिया के सभी देशों को ना करोड़ों लोगों को उनका चैनल ना मोनेटाइज करके उसे अपना प्रोग्राम पार्टनर बना रखा है। मैं भी उसका प्रोग्राम पार्टनर हूँ। तो मेरा सवाल ये है सर जी से कि भाई भारत के कितने लोगों का चैनल मोनेटाइज करके उनको काम दे रखा है, इसकी जानकारी सरकार को है, आपको है, तो थोड़ा प्लीज आप ये बताइएगा। धन्यवाद। नहीं, ये तो बड़ा टिपिकल है, बिकॉज वो तो यूट्यूब के सब्सक्राइबर कितने हैं, कैसे उनके अकाउंट्स है, ये कोई गवर्नमेंट के पास उस तरह का रिकॉर्ड तो नहीं रहता। हाँ, अगर जो पैसा उन अकाउंट्स में जब ट्रांसफर होता है, बिकॉज डेफिनेटली इट कम्स थ्रू बैंक अकाउंट, तो वहां तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आता ही है। जी, और अब हमारे साथ बलरामपुर से जुड़ गई हैं रिंकी। आपका प्रोग्राम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। स्वागत के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछे प्लीज। जी मैम, मेरा सवाल है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें जब तक हमारे इंडिया मतलब डेवलपमेंट या निवेश में किसी भी चीज में आगे हो जाए, तो उन्होंने डॉलर पे रखा है कि हम इतना डॉलर निवेश करेंगे। तो अब पर हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो तो खराब होता है। जैसे अभी कहा जा रहा है कि जो तीसरा वेव आने वाला है वो भी होगा। तो इस स्थिति में क्या हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो कह रहे हैं डॉलर को पाने के लिए, तो क्या हो सकता है कि वो निवेश करके डॉलर उतना तक पा सकते हैं? आर्थिक स्थिति नहीं कर सकते, इस पे क्या कहेंगे सर? धन्यवाद। आप जानना चाह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि एक पर्टिकुलर एक अमाउंट रखा है, कितना डॉलर हम निवेश करेंगे, वो कर हो सकता है या नहीं? मेरे ख्याल से देखिए, ये तो इसमें ये भी हो सकता है, जानना चाह रहे हो कि बाहर से हमारे यहाँ डॉलर्स में कितना निवेश आएगा। दोनों फैक्टर है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बढ़ी रही है और गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट्स है या स्कीम्स है, जो प्लान है, वो तो बजटरी प्लान के हिसाब से होता है। डेफिनेटली गवर्नमेंट पहले तय करती है कि हमें इतना एक्सपेंडिचर करना है, ये कैपिटल है या ये दूसरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिपेंड्स ऑन दैट, तो गवर्नमेंट करती है। साथ में ये भी है कि अभी जो लेटेस्ट जो अंकटाड वगैरह की रिपोर्ट आई है, तो जो एफडीआई का इन्फ्लो है इंडिया में, डेफिनेटली जो डॉलर्स में हम लोग सब काउंट करते हैं, वो काफी बेहतर रहा है। हाँ, इनका सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि जो कोरोना की जो अब तीसरी वेव की बात की जा रही है, क्या इतना एफडीआई आ पाएगा उन हालात में? ये कंसर्न इनकी ज्यादा लग रही थी रिंकी की। बहरहाल हम हमारे अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। धर्मवीर जी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। मैं धर्मवीर दिल्ली से बोल रहा था। जी बोलिए सर। जैसे कि न्यू कस्टमर को जानकारी शेयर मार्केट की नहीं होती, और जैसे कि पिछले टाइम हमने देखा था कि सोना 57,000 था, तो ऐसे श्रोता को, ऐसे कस्टमर को क्या करना चाहिए? क्या गोल्ड डायरेक्ट खरीद लेना चाहिए, या ऐसे इनको जानकारी शेयर मार्केट में पैसा लगाने की नहीं है, तो ये इनको सुविधा के हिसाब से जैसे सोना खरीद लिया उसमें इन्वेस्ट करना क्या कितना ठीक रहेगा? इसके लिए हमें कुछ गाइडेंस करेंगे तो कृपा करके नए कस्टमर के लिए आपकी बहुत मेहरबानी। देखिए, ये तो कार्यक्रम ही एक तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग इकोनॉमी और मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, उनको काफी जागरूक करने का कार्यक्रम है और लगातार इसके बारे में बात होती है। ये बात सही है कि ये हमेशा एक सलाह दी जाती है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ कर करें और उसके बारे में जानकारी जरूर हासिल करें। कहीं भी स्पेकुलेशन के आधार पर आप जो है जोखिम ना लें। तो इसमें स्टॉक मार्केट में भी इसीलिए म्यूचुअल फंड रूट की सलाह दी जाती है, या आप बिल्कुल सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो और आपका जो इनकम लेवल अलाउ करता है तो आप पीपीएफ में जा सकते हैं, जहां एक तरीके से स्ट्रेटेजिक गारंटी की तरह से है, या जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हैं उनमें कंपेरेटिवली बेहतर रिजल्ट है। बट जो लोग ज्यादा कमाना चाहते हैं उनके लिए मार्केट कहा जाता है, बट मार्केट में कोई भी व्यक्ति जो बेहतर जानकारी नहीं रखता कॉर्पोरेट के बारे में, मार्केट के बारे में, उसको सीधे मार्केट में उतरने से बचने की सलाह दी जाती है। और यही बात जो बुलियन में है, क्योंकि बुलियन में जो हमारे कमोडिटी एक्सचेंजेज है वहां पर होता है, बट आपको एक ट्रेंड देखना चाहिए, क्योंकि बुलियन भी एक ऐसी कमोडिटी है उसमें सिर्फ हमारा देश का ट्रेंड से मतलब नहीं होता, वो इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्ट लिंक्ड है। और बिकॉज करेंसी का प्राइस, ग्लोबल मार्केट में डिमांड, वहां पे किस तरीके के फ्यूचर्स चल रहे हैं, तो ये काफी कुछ उसके बारे में जानने समझने की जरूरत है। उसके बाद ही आप निवेश करने के बारे में फैसला लें। And now the next caller on line is from Delhi. Rinku, welcome to the program. अपना सवाल पूछिए प्लीज। मार्केट मंत्रा टीम को और आकाशवाणी टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, सवाल पूछिए अपना। जी सर, मेरा सवाल है कि मैं चाहता हूं कि जैसे मैं छोटा निवेशक हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं अपना जैसे 1-8 लाख रुपया लगा के कुछ ऐसे कोई है पैसा कहाँ लगाऊं जो पैसा कम सके? और
जी 1 लाख रुपया निवेश करना चाहते हैं। देखिए अभी जैसे एक तो मैंने कहा आपको, आप जो म्यूचुअल फंड में SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, और वो ऐसा भी नहीं कि ये सारा पैसा आप एक साथ लगाएं। अच्छा, लेकिन वहां पर आपके पास ऑप्शन भी होते हैं, डेट फंड होते हैं और इस तरीके का, जिसमें इतना पैसा भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो एक्सपर्ट हैं इन्वेस्टमेंट के और डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में जिनको ज्यादा समझ होती है, वो फैसला लेते हैं कि कैसे आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो आप उस रूट पे जा सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा है, आप PPF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट उसमें एक लॉक इन पीरियड है, 15 साल आपको जो है पैसा वहां पे रखना पड़ेगा और हर साल कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा। जी, और अब नजर डाल लेते हैं रुपए के आज के प्रदर्शन पर। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 15 पैसे कमजोर होकर $1 की तुलना में 73 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। रुख करते हैं एशियाई बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों में आज कारोबार मिला जुला रहा। जापान का निकेई सूचकांक हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% की गिरावट में रहा, लेकिन दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.3% की बढ़त दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.3% चढ़ा और हांगकांग का हैंगसेंग मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.4%, फ्रांस का CAC 40 0.8% और जर्मनी का डेक्स 0.9% की बढ़त में रहे। छत्तीसगढ़ से हमारे अगले कॉलर हैं मानिक। हेलो जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि मेरा जो है 5,000 रुपया मैं SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं उसको क्या प्रॉफिट को अपना बुक कर सकता हूँ क्या, जब मेरा प्रॉफिट होता है तब? जी देखिए, एक तो ये देखना पड़ेगा कि आपने जो SBI की जो स्कीम है, किस स्कीम में आपने ये इन्वेस्ट किया है, और जाहिर सी बात है कुछ तो कैपिटल गेन की उसकी स्कीम होती है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है कि आपको कैपिटल गेन ना देना पड़े, तो और टैक्स से आप बचें, अगर उस ड्यूरेशन के लिए आपको रुकना पड़ेगा। अदरवाइज जाहिर सी बात है कि ये जो आपने जब इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर आपका रिटर्न अच्छा है तो आप बुक कर ही सकते हैं, बट जो इनकम होगी वो आपके ओवरऑल इनकम में जरूर इनकम। और एक ऑप्शन और भी होता है कि हम ग्रोथ फंड में, मतलब ग्रोथ उसमें जो है वो उसी में हम जो हमारा लाभ री इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो तो कंटिन्यूटी आपको इन्वेस्टमेंट में जारी रह सकती है। And the next caller online now is Sugan from Kolkata. Sugan, welcome to the program. Please ask your question. Good evening, everybody. Actually, I'm an investor who mainly believes in mutual fund investment. I don't do for online trading. But my question at this very juncture, when there's a huge growth in the index, Sensex and all, is it the right time to invest in global equity fund like US Blue Chip Fund and all? If you kindly throw some light on this. Yes, you can actually you can compare that whatever investment you are making and what are you buying against that in the domestic market as well as the global market, and you can look for the trend in the markets also, and you can do a comparable between the two. In the global market where you want to invest the growth and the way it is going up, or the domestic market, whichever is the best suitable to you to make more money in your future, so you can take a call accordingly. And the next caller online is Ratnakar from Mumbai, but before we take his question, we are going to go into a small commercial break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back to the Market Mantra program, and let's go straight off to Mumbai where Ratnakar is waiting online with his question. Ratnakar, welcome to the program. Please ask your question. हेलो। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि मार्केट जो अभी ऊपर जा रहा है, तभी
ये स्टेज में रिटेल इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना उचित रहेगा क्या, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर उस पर निवेश करने के लिए ये कैसा है? देखिए, एक तो ये डेफिनेटली यू राइट के मार्केट बहुत ऊपर चला गया, रिकॉर्ड है, और 60,000 का लोग पहले सोचते थे जाएगा नहीं जाएगा, बट इट इज क्रॉस्ड और रुका हुआ है वहां पर, ये है। बट ये आपको देखना पड़ेगा कि आप मार्केट में कब आपने एंट्री किया था। अगर आपने ऑलरेडी पीक में एंटर किया तो अभी आपको तो फिर वेट करना चाहिए, तो बिकॉज लॉन्ग टर्म में ही आपको देखना पड़ेगा। और आपने 6 महीने पहले, साल भर पहले आपने एंट्री किया है मार्केट में जिन स्टॉक्स में किया, इट इज नॉट नेसेसरी कि सभी स्टॉक उसी अनुपात में बढ़े हैं, ये भी नहीं है। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स मार्केट को ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं और उनमें काफी सारे बहुत कॉस्टली भी हैं। तो ये आप अपना कैलकुलेशन देखिए, आपने कब एंटर किया और वाकई आपको अच्छा खासा रिटर्न उस पर है तो आप एक फैसला ले सकते हैं। डेफिनेटली आईटी और फार्मा ऐसे सेक्टर है कि जो उनके ऊपर स्थितियां बेहतर है उनके लिए, और क्योंकि आईटी में ग्रोथ लगातार हो रही है, आईटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और बट ये डिपेंड भी करता है कि आप किस तरीके के आईटी स्टॉक्स में आप एंटर करेंगे। बट डेफिनेटली आईटी इज डूइंग वेल एंड मे बी विल बी डूइंग बेटर इन फ्यूचर ऑल्सो. And the next caller is from Mumbai, Mr. Hasmukh. Mr. Hasmukh, welcome to the program. Please ask your question. Yeah, good evening, Market Mantra team. Good evening. जी, अपना सवाल पूछें. My question is, how the RBI is going to now behave in their October policy, because the Federal Reserve has already, opened their cards for tapering and, reduction of interest rate. I'm sorry, increase of interest rate. Actually, there is inflationary pressure. As you said, the Federal took the call only after that. So, but in India, still stance is to basically support the growth. That's why, despite huge liquidity, RBI and WPI was very high in double digit. CPI is also crossed RBI is 4+ plus minus 2% range, but now basically it's eased some at some level, particularly CPI. So even at such a higher level of inflationary pressure, RBI kept this thing to keep it on like for growth. So I hope that RBI stance will remain for growth, will be the major priority, and because we have good monsoon, so inflationary pressure from food will not be very high. In fact, it is going down in some food products. Prices has gone down heavily, or except only the products where we depends on imports. Otherwise, it is the pressure is not like that. But one pressure is coming up from energy sources. So that's why that is also in the mind of the RBI. But looks like that growth will be the focus of RBI. और अब एक खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस मिशन से देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। Moving on, the government today said the estimated total employment in the 9 selected sectors is 3 crore 8 lakhs in the first round of the quarter April to June 2021. Announcing quarterly employment survey or the QES, Labour and Employment Minister Bhupender Yadav today said the estimated total employment in the 9 selected sectors from the first round of QES is 3 crores and 8 lakhs approximately, against a total of 2 crore and 37 lakhs in these sectors taken collectively as reported in the 6th Economic Census of 2013-14, reflecting a growth rate of 29%. He said of the total employment estimated in the selected 9 sectors, manufacturing accounts for nearly 41%, followed by education with 22%. Health is at 8%. Mr. Yadav said trade as well as IT and BPO each engaged
7% of the total estimated number of workers. And now the next caller is Jitendra from Noida. Jitendra, welcome to the program. Please ask your question. मार्केट मंत्रालय टीम को मेरा नमस्कार जी, सवाल पूछे। मैडम, मैं जानना चाहता था जो म्यूचुअल फंड से जो इनकम होती है उसे इनकम टैक्स में किस तरह से एप्लीकेबिलिटी होती है, मतलब इन्वेस्टर के ऊपर क्या लायबिलिटी होती है उसकी? देखिए, कुछ स्कीम्स तो ऐसी हैं जो आपको टैक्स बेनिफिट देती हैं और कुछ स्कीम्स ये है कि जो आपके फिर इनकम में उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स, फिर उसमें एक सर्टेन पीरियड भी होता है कि कब आप उसमें से एग्जिट करते हैं। इफ यू कंप्लीट दैट पीरियड दैट इट इज नॉट टैक्सेबल, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट द काइंड ऑफ स्कीम एंड व्हेन यू एंटर एंड एग्जिट। Moving on to commodities, global crude oil prices rose for a fifth straight day today, with Brent at its highest since October 2018 and heading for $80 a barrel amid supply concerns as demand picks up in parts of the world with the easing of pandemic restrictions. So Brent crude jumped $1.15 to trade at $79.24 a barrel. US crude added $1.07 to $75.05 a barrel. Meanwhile, Goldman Sachs raised its forecast for Brent crude by the end of this year to $90 per barrel. Mr. Harveer Singh, you have been mentioning throughout the program that the energy prices are, are going to be cause of concern, the inflationary, of course. So quick comment on the fact that it's already touching $80, the Brent crude, and predicted to be $90 by the end of the year. Very quick comment. Yeah, it is not good for us. In fact, it will bring inflationary pressure and the cost to the life of the common man, and it will add the production cost for many things, transport and other services also. I think because we import more than 80% of our requirement of crude, so that's why we should hope that prices not touch $90. जी, और अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 35 रुपए महंगा होकर 45,110 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी 383 रुपए के उछाल से 59,138 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ $1,755 प्रति औंस, जबकि चांदी अपने पूर्व स्तर $22.60 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। And that's all we have time for in the program. Mr. Harveer Singh, thank you so much for coming to the studio and taking queries from our listeners. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. At the stock markets, Sensex ends with a marginal gain of 29 points at an all-time closing high of 60,078. Nifty moves just 2 points to a fresh record high. Rupee depreciates 15 paisa against the dollar. Prime Minister says Ayushman Bharat Digital Mission has the power to revolutionize healthcare in the country. And estimated total employment in the 9 sectors stands at 3.08 lakhs in the first round of the April to June quarter. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.